اسرائیلی بربریت اور جارحیت کے خلاف سیاسی قیادت یک زباں، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس، قومی قیادت کی اسرائیلی ظلم و جبر کی شدید الفاظ میں مذمت، فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار، قومی قیادت کی مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی مخالفت، فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کی حمایت، اقوام عالم سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، فورم اسرائیل کے نسل کشی پر مبنی اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے، فلسطینی عوام کو غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں، آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس عرب لیگ اور OIC کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتی ہے، APC کا مشترکہ اعلامیہ، آل پارٹیز کانفرنس میں تمام حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کی شرکت، دعوت ملنے کے باوجود تحریک انصاف نے APC میں شرکت نہ کی۔ It has been 1 year since the start of the brutal Israeli aggression on Gaza and Palestine. Further expanded its brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria, and Yemen. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns. International community has failed to stop Israel. اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرہ ہے، اسرائیل اپنی سفاکانہ کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھاتا جا رہا ہے، اسرائیل لیبنان اور یمن میں بھی معصوموں کا خون بہا رہا ہے، عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام ہے، سلامتی کونسل خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنائے، فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں، اسرائیل غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اسرائیلی جارحیت سے اب تک 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے، صدر مملکت آصف علی زرداری کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ دو ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا خون خدا نخواستہ ان کے خون سے کوئی سستا ہے، عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے۔ نیتنیاہو تقریر کرنے آ رہا تھا، جو ہی وہ آئے ہمارا پورا وقت ہم واک آؤٹ کر گئے۔ کیا مسلمانوں کا خون دیگر ملکوں کے لوگوں سے سستا ہے؟ عالمی طاقتیں ہر مسئلے کے حل کے لیے میدان میں آتی ہیں، ہمیں عالمی ضمیر کو جگانا چاہیے، غزہ میں قتل و غارت کو روکنا ہمارا اولین فرض ہے، ہمیں اپنے فیصلے جرأت کے ساتھ کرنے چاہیے، فلسطین کے 2 ریاستی حل کی نہیں، آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کرنی چاہیے، عالم اسلام کو فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے، اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران واک آؤٹ دل کی آواز تھی، IMF کی پرواہ کیے بغیر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف تقریر کی، ہمیں مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی بھی بھرپور مذمت کرنی چاہیے، وزیر اعظم شہباز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ فلسطینیوں کا جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی، ان عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ اسلامی دنیا کا یا فلسطین کے لوگوں کا کہ صبر کا امتحان لیں گے۔ اسلامی ممالک ہیں، ان کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی کھڑا رہے گا۔ نواز شریف کا اسلامی ملکوں سے غزہ کے حوالے سے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ، غزہ دنیا میں خوفناک بربریت والا کیس ہے، یہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے، بچوں کی خون آلودہ تصویریں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، فلسطینیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی فوجی طاقت نہیں، اسرائیل نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اسلامی ملکوں کو اپنی بھرپور قوت کا استعمال کرنا چاہیے، اسلامی ملک اگر آج اپنی قوت کا استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اسرائیلی بربریت کے خلاف خاموشی اختیار کرنا انسانیت کی تذلیل ہے، اقوام متحدہ بالکل بے بس بیٹھی ہے، اقوام عالم کی خاموشی شرمناک ہے،
ऐसी कौम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात। कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर शदीद रंजो आलम का इजहार। धमाके के जिम्मेदार अफराद की जल्द अज जल्द शनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त के बाद उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर का मामले की मौसर तहकीकात, जिम्मेदार दहशतगर्दों की फौरी शनाख्त और उनको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफ़ीर से मुलाकात। धमाके में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़या की जामे तहकीकात को यकीनी बनाकर सानहा में मुलव्वस अनासर को करार वाकई सजा दी जाए। बुज़दिल दुश्मन की इस साजिश को हरगिज़ कामयाब न होने देंगे। वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी। मोटरवे M2 पर कोट अब्दुल मालिक के करीब अलमनाक हादसा। बस की वैन को टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अमान खान, बहराम खान, हुजूर मोहम्मद, फरीद खान और मोहम्मद अयूब के नाम से हुई। हादसे की शिकार वैन को हाट से लाहौर आ रही थी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की मनोड़ा के करीब कार्रवाई। राह का एजेंट गिरफ्तार करने का दावा। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद सलीम के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ महकमा जात के सर्विस कार्ड भी बरामद। मुलजिम से पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात भी हासिल कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ औकात में नेपाल और भारत भी जाता रहा। मुलजिम से मनोरा और चाइना पोर्ट के नक्शे भी बरामद। तर्जुमान SIO। ऐवान सदर में मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियात में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म में मुलाकात। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार भी शरीक। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। APC के मुश्तरका इनेकाद पर सदर और वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। मियाँ साहब, आपको इस्लामाबाद मिस कर रहा है, क्या आप भी मिस कर रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें। नवाज शरीफ का चलते चलते जवाब। आईनी तरमीम का काम कहाँ तक पहुँचा? नवाज शरीफ जवाब दिए बगैर रुखसत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज 11:30 बजे तलब कर लिया। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौराए अमरीका से वापसी पर यह पहला इजलास होगा। अली अमीन कहाँ गायब रहे? मोहसिन नकवी को तहकीकात करनी चाहिए। गाड़ी की डिग्गी या टैक्सी में गए, JIT बननी चाहिए। अली अमीन गंडा पर खुद साख्ता रूपोश रहे। इतना नाअहल, नालायक और गैर जिम्मेदार वज़ीर आला 24 घंटे गायब रहा। PTI के अंदर ही मीर जाफर बैठे हुए हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को जलसे में दावत देना मुल्क दुश्मनी है। ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम दुनिया महब बुखारी के साथ में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में PTI क़यादत का कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 14 हो गई। तमाम मुकदमात में बानी PTI अली अमीन गंडापुर और दीगर क़यादत नामजद। सेल की गई FIRs की कापियां भी मंजर आम पर आ गई। थाना कोहसार में 3, थाना सेक्रेटरीट रमना नून अबारा में 1-1 मुकदमा दर्ज। थाना सुंबल, कराची कंपनी, गोलड़ा, I9 और दरनोल में भी मुकदमात का इंदराज। तमाम मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, रियासत के खिलाफ उकसाने की दिफात शामिल।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में इस्लाहात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम चार्टर के असूलों पर अमल से मजबूत हो सकता है। लाइक माइंडेड प्रोग्राम का ग्रुप मौक़िफ़। यूएन निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ग्रुप ने यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी को अमन और सलामती के खिलाफ संगीन खतरा करार दिया। पिछले मुआहदों में तब्दीली काबिल कबूल नहीं। LMG ने बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात पर जोर दिया। मुनीर अकरम का बयान। कयामत खेज ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में 87,000 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में ज़लज़ले ने 56% आबादी को नुकसान पहुंचाया। देहातों के देहात सफाई हस्ती से मिट गए। ज़लज़ले से मुजफ्फराबाद और बालाकोट सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। 78,000 इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। 6 लाख मकानात और 17,000 स्कूल मुतासिर हुए। मुतासिर इलाकों में तबाही के आसार आज भी मौजूद। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुदरती आफात के कौमी दिन पर पैगाम। 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला नाकाबिल फरामोश तबाही का बाइस बना। कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरात बढ़ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने अपने पैगाम में कहा, 8 अक्टूबर हमें 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले की याद दिलाता है। हमने हमेशा अपनी बहादुर अवाम की मदद से ऐसी तमाम आफात का मुकाबला किया। मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार न होने के बावजूद हमें इसके मुज़र असरात का सामना है। कुदरती आफात से मसाइल की शिकार हमारी मईशत को तबाहकुन धचका पहुंचा है। गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। जंगबंदी से यरगमालियों की रिहाई और फलस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा होगा। हमास को कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। हमास की मंजूरी के बगैर गजा में जंगबंदी का मुआहदा मुमकिन नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कैदियों को रिहा कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मालूम है इसराइल लेबनान में महदूद कार्रवाइयां कर रहा है।